Assalamu alaikum students. So in our previous lecture we have discussed the transaction exposure and the economic exposure. So let's review the previous lecture and then we will move on towards the translation exposure. We discussed the criteria for the cross hedging and it was decided or discussed कि आपने अगर cross hedging करनी है in terms of your transaction exposure, if it's not possible to completely hedge by using the other possible methods, there is a possibility that you can go for the cross hedging. Now what was cross hedging? In case of cross hedging, it is suggested that you can basically cross hedge. You can, if the currency cannot be hedged, so you can use another currency for hedging, and that can be done only if it is possible कि अगर आपकी जो दूसरी currency आप hedging के लिए use कर रहे हैं that has a positive, strong positive correlation with your own currency, वो currency जिसको आप hedge करना चाह रहे थे और उसकी hedging possible नहीं है, in terms कि आप transaction exposure को avoid करना चाह रहे थे, transaction exposure को avoid करने के लिए या transaction exposure को hedge करने के लिए आपकी multinational company ने ये बात decide कर ली कि yes, they have to go for some type of transaction exposure hedging criteria. If you find, being a finance manager, that it is not possible to use the available methods of hedging, which is the forward contract or future contract or the money market contract or any other way, the जो options थे, currency options contract, you can go for something which can be called the cross hedging. कि अगर आपकी जो करेंसी आप हेज करना चाह रहे हैं उसमें हेजिंग पॉसिबल नहीं है, सो यू कैन गो फॉर दी अदर करेंसी फॉर हेजिंग. तो दूसरी करेंसी को हेज करने के लिए आप वो करेंसी चूज करेंगे जिस करेंसी की आपकी करेंसी के साथ कोरिलेशन स्ट्रांगली पॉजिटिव हो. In that case, basically what you are trying to do is कि अगर आपकी currency positive move करती है in one direction, the other currency which you are trying to use for the hedging also move in the same direction for the positive way. So that means both of them are having a positive correlation with each other, and in that case you can hedge against any type of transaction exposure. तो cross hedging तो possible होगी जब दोनों currencies के दरमियान में positive correlation होगी और आप choose कर रहे हैं another currency because आप जिस currency में hedging करना चाह रहे हैं उसमें possible ही नहीं है hedge करना. So when you are trying to use for cross hedging, आपके माइंड में एक चीज लाजमी होनी जरूरी है कि आपकी करेंसीज आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो. On the other hand, when you are trying to go for the hedging, then you can go for the currency diversification. Now when you are trying to use the currency diversification as a hedging criteria, अब इस केस में क्या होगा? You are trying to choose those currencies कि जिसमें आपकी डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल हो. डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से पॉसिबल होगी कि तमाम की तमाम करेंसीज की आपस में, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपोर्ट्स डिफरेंट करेंसीज में कर ली. अब उन तमाम डिफरेंट करेंसीज में जो आपने एक्सपोर्ट्स किए हैं या डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स किए हैं, उन तमाम की करेंसीज भी डिफरेंट हैं. सो दैट मीन्स आपने करेंसी डाइवर्सिफिकेशन को ऑप्ट किया फॉर हेजिंग बिकॉज आप जब एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो तमाम कंट्रीज की जो करेंसीज हैं वो आपस में डिफरेंट हैं. सो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या होगा कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज द डाइवर्सिफिकेशन, तो उसमें बेस्ट पॉइंट ये है कि आपको अगर किसी एक कंट्री से लॉस हो रहा है तो दूसरे कंट्री से आपको बेनिफिट हो जाएगा. व्हाट यू कैन डू इन दैट केसेस कि आप करेंसी डाइवर्सिफिकेशन को यूज करके आप अपने फ्यूचर लॉसेस को हेज कर सकते हैं बिकॉज यू आर थिंकिंग कि अगर आपको किसी एक कंट्री से लॉस होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे कंट्री से आपको प्रॉफिट होगा. करेंसी डाइवर्सिफिकेशन में जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है या मेन पॉइंट आपके याद रखने का है, दैट इज कि आपने जब करेंसी डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो एक पॉइंट को फोकस लाजमी करना है जो कि आपके क्रॉस हेजिंग से कंप्लीटली ऑपोजिट है कि इन दिस केस व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट करेंसीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन पर्पस, तो उन तमाम करेंसीज की आपस में कोरिलेशन नेगेटिव होनी चाहिए. इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, then you would be able to find the benefit of currency diversification. Why? Because अगर आपके दोनों currencies के दरमियान positive correlation है, so that means दोनों का objective, diversification का objective खत्म हो गया. Why? क्योंकि एक currency अगर positively move करती है तो दूसरी भी positive move कर रही है.
अगर आपने करेंसी डाइवर्सिफिकेशन को यूज कर लिया इन नेगेटिव हैविंग द नेगेटिव कोरिलेशन विद ईच अदर, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज अगर तो पाउंड्स की या यूरोस की जिस तरह आपने एग्जांपल ली तो दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, से फॉर एग्जांपल वो 90% पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस के लिए इंग्लैंड में भी इन्वेस्टमेंट कर दी और आपने इटली में जहां फॉर एग्जांपल यूरो यूज हो रहा है वहां भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब अगर दोनों की कोरिलेशन पॉजिटिव है, तो अगर एक करेंसी में चेंज आता है तो दूसरे में भी एक्सचेंज रेट में चेंज आता है। इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू हेज योर मल्टीनेशनल कंपनी अगेंस्ट exchange rate fluctuations if you are trying to use them as currency diversification. So उसमें best possible way क्या होगा कि what you can do is you can go for something where you can try कि दोनों currencies में negative correlation हो। से फॉर एग्जाम्पल एक आपने इन्वेस्टमेंट कर दी इंडियन रुपी में और दूसरी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर में। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडियन रुपी में इन्वेस्टमेंट और यूएस डॉलर की जो आपस में जो इन दोनों का आपस में जो कोरिलेशन है इन दो करेंसीज की वो नेगेटिव हो, कि जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पाक इंडियन रुपी की प्राइस डाउन डिक्लाइन करती है, या इंडियन रुपी जब अप्रिशिएट होता है तो डॉलर डिक्लाइन करता है ड्यू टू एनी रीजन। अगर तो इन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब अगर आप इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंट्रीज में कर रहे हैं सो किसी एक कंट्री का डिक्लाइन दूसरे कंट्री में जो पॉजिटिव चेंज आएगा उससे ऑफसेट हो जाएगा, एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि आप बेसिकली बेनिफिट ले लेंगे ड्यू टू द नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू करेंसीज, कि अगर आपने करेंसी डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो किसी एक में चेंज डिक्लाइन दूसरे में पॉजिटिव चेंज will basically give you some type of benefit in terms of currency diversification जो आप hedging के लिए यूज कर रहे हैं। So in case of transaction exposure we discussed कि अगर आपके पास बाकी सारे options खत्म हो गए या बाकी तमाम जो आपकी hedging के methods हैं you can't use it, then you can go for cross hedging or you can go for currency diversification. The difference between cross hedging and currency diversification is कि in terms of cross hedging you will try to find those currencies who have the strong positive association or who have the strong positive correlation. However, when you are talking about the currency diversification, so you will go for something where you will try to choose where both the currencies have negative correlation with each other, and the most strong negative correlation available between each other, the most favorable condition you will have. तो अगर तो आप क्रॉस हेजिंग को चूज कर रहे हैं तो आप वो करेंसीज चूज करें जहां पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर आप करेंसी डाइवर्सिफिकेशन को यूज करें तो वो करेंसीज चूज करें जहां नेगेटिव कोरिलेशन है। Then we also discussed economic exposure. जब आप इकोनॉमिक एक्सपोजर की बात करते हैं सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ सबसेट, जो आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोजर, बिकॉज आपका जो एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है दैट इज व्हेन योर कंपनी इज फेसिंग द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज वेरिएशन ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। However, when you are talking about the economic exposure, तो economic exposure क्या है कि जब आप ट्राई कर रहे हैं या ये देख रहे हैं कि कितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इफेक्ट हो सकती हैं ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, सो दैट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है कि इकोनॉमिक एक्सपोजर के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि किसी एक करेंसी में या किसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कितना मूव करेगी। सो इन दैट केस इकोनॉमिक एक्सपोजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनी अगर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी फेस कर रही है, इकोनॉमिक एक्सपोजर भी फेस कर रही है, इफ पॉसिबल फाइनेंस मैनेजर कैन फाइंड सम हेजिंग टेक्निक्स फॉर योर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि इकोनॉमिक एक्सपोजर को आप 100% ना हेज कर सकें, या फिर इफ टू सम एक्सटेंट यू आर ट्राइंग टू हेज अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सपोजर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 100% आप ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को हेज ना कर सकें। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि आप बेसिकली हेजिंग को यूज करते हैं, बट आप जब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है और इकोनॉमिक एक्सपोजर है, अगर आप उन दोनों को 100% यू कांट गारंटी कि आप इन दोनों को 100% हेज कर सकते हैं। Now we also discussed कि जब इकोनॉमिक एक्सपोजर की आप बात कर रहे हैं सो इकोनॉमिक एक्सपोजर को आप एम्पिरिकली भी एनालाइज कर सकते हैं, और एम्पिरिकल एनालिसिस क्या होता है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सी कि हाउ मच वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ओवर द अदर वेरिएबल।
तो आपका बेसिकली किसी एक वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना आएगा, या फिर किसी एक वेरिएबल में चेंज दूसरे वेरिएबल को कितना डिपेंड करता है उसमें चेंज को. सो इन दैट केस बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सी कि आपका एम्पिरिकल एनालिसिस के थ्रू, जो कि आप रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें आप डिपेंडेंस चेक करते हैं वन वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के ऊपर, सो यू आर ट्राइंग टू सी कि किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा. सो दैट इज कॉल्ड योर एम्पिरिकल एनालिसिस. सो हमने जब बात की थी आपके ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की और इकोनॉमिक एक्सपोजर की, तो इकोनॉमिक एक्सपोजर की जो स्पेसिफिक एग्जांपल जिस तरह हमने नाइकी की भी ली थी कि नाइकी की जो सेल्स हैं दैट कैन बी इफेक्टेड ड्यू टू द डिमांड इन एडिडास, और एडिडास की डिमांड क्यों इंक्रीज होगी? ड्यू टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट के नाउ पीपल आर ट्राइंग टू बाय मोर ऑफ द एडिडास प्रोडक्ट्स रादर देन बाइंग नाइकीज प्रोडक्ट्स. सो उस केस में बेसिकली आपके लिए बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी और बीइंग द पेरेंट कंपनी ऑफ नाइकी, यू आर फेसिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर. और उस एक्सपोजर को चेक करने के लिए कि नाइकी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी इफेक्ट होगी अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग द एम्पिरिकल एनालिसिस. तो अगर आपने कोई एम्पिरिकल स्टडी करनी है टू सी कि नाइकी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी इफेक्ट्स हो सकती हैं ड्यू टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट बिटवीन द डॉलर एंड एनी अदर करेंसी जिस कंट्री में भी नाइकी अपनी एक्सपोर्ट्स दे रहा है. तो क्योंकि नाइकी के एक्सपोर्ट्स डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, इसके डिमांड बहुत ज्यादा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नाइकी के प्रोडक्ट्स की डिमांड चेंज हो जाएगी ड्यू टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. उन तमाम कंट्रीज का एनालिसिस करने के लिए यू कैन गो फॉर द इकोनोमेट्रिक टेक्निक विच इज कॉल्ड द रिग्रेशन एनालिसिस, बाय विच यू कैन सी कि किस कंट्री में नाइकी के प्रोडक्ट्स की डिमांड एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से कितना डिपेंड करती है. और जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा आपकी फोरकास्टिंग भी इंप्रूव हो सकती है, दैट यू कैन सी कि नाइकी के प्रोडक्ट्स इस कंट्री में ज्यादा इंपैक्ट आता है उन प्रोडक्ट्स पर ड्यू टू द चेंज इन द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. सो दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्सपोजर. तो जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सपोजर की, सो दैट इज समथिंग वेयर यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे द ब्रॉडर पिक्चर कि आपकी ओवरऑल चेंज कितना आता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज में ड्यू टू द चेंज इन एनी फैक्टर, स्पेसिफिकली ड्यू टू द चेंज इन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. So that was all about the empirical analysis on economic exposure. Let's discuss them into more detail in this lecture, and then we will move on towards the translation exposure, which is the third and last exposure by which any multinational company can face the exchange rate movement changes in their financial health of their organization. The economic exposure where we can take it as the model may be revised to handle additional currencies by including them as additional independent variables. कि जिस तरह अभी हमने बात की थी कि आप किसी भी करेंसी से रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं कि उसमें किसी एक्सचेंज रेट का मूवमेंट कितना इम्पैक्ट ला सकता है टुवर्ड्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज. और आपने जो इक्वेशन यूज की थी दैट वाज PCF, which is the present value of the cash flows at time t equals to A0, जो कि आपका इंटरसेप्ट टर्म है जहां से आपकी इक्वेशन स्टार्ट होती है, प्लस A1 जो कि आपकी स्लोप टर्म है और जो कि आपकी रिग्रेशन लाइन का चेंज रेट ऑफ चेंज मेजर करती है कि कितना चेंज पॉसिबल है ड्यू टू द चेंज इन एनी चेंज इन एक्सचेंज रेट मूवमेंट. E1 या ET आपने डिफाइन किया जो आपकी एक्सचेंज रेट मूवमेंट हो रही है या एक्सचेंज रेट चेंज आ रहा है वो आएगा, प्लस जो आपकी एरर टर्म है यू कैन राइट इट एज एप्सिलॉन. अब इन तमाम में जिस तरह से आपने कहा द मॉडल में बी रिवाइज टू हैंडल एडिशनल करेंसीज, तो आपने तो बेसिकली एक ले लिया, एक करेंसी का चेंज यहाँ ले लिया. से फॉर एग्जाम्पल ये आपने ले लिया एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर टू पाक रुपीज. अब अगर आपकी पेरेंट कंपनी जो है वो डील कर रही है इन डिफरेंट करेंसी से, आपकी 20 कंट्रीज में डील कर रही है आपकी जो पेरेंट कंपनी है, सो 20 सब्सिडरीज हो गई और 20 करेंसीज हो गई. What will happen in that case कि आप 20 डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स में डील कर रहे हैं. अब अगर आपको बीइंग पेरेंट कंपनी जो आपकी प्रेजेंट कैश फ्लो है या पेरेंट कंपनी की जो कैश फ्लो है जो कि ये है जो आपकी पेरेंट कंपनी की कैश फ्लो है, इस कैश फ्लो के ऊपर हर एक्सचेंज रेट का क्या इंपैक्ट आएगा. सो दे आर सेइंग दैट यू कैन इंक्लूड देम एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये आपका मेन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. से फॉर एग्जाम्पल ये आपका डॉलर टू पाक रुपी आ रहा है,
नाउ यू कैन ऐड देम, तो आप इसी इक्वेशन को एक्सपैंड कर दें, आप यहां से कैरी ऑन कर लें और आपके पास आ जाएगा ए टू ई, जो भी आपकी 2 कर लें, जिसमें आपकी सेकंड जो आपका एक्सचेंज रेट है, जो आपकी सेकंड सब्सिडरी है, उसके लिए आएगा A3 इंटू E3 प्लस A4 इंटू E4 एंड सो ऑन. यू कैन मेक इट टू A20 प्लस A20 इंटू E20 एंड प्लस दी एरर टर्म. अच्छा, अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि आपकी जो पेरेंट कंपनी की जो कैश फ्लो है, जो फ्यूचर कैश फ्लो है, वो कितनी इफेक्ट होगी ड्यू टू दी एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स इन डिफरेंट करेंसीज. अब अगर आपकी पेरेंट कंपनी जो है वो आगे फर्दर उसकी 20 सब्सिडरीज हैं, नाइकी की हमने एग्जांपल ली से, फॉर एग्जांपल 20 कंट्रीज में डील कर रही है और 20 डिफरेंट करेंसीज को डील कर रही है, उन तमाम के एक्सचेंज रेट्स को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप ऐड करते जाएं. ये तमाम वेरिएबल्स, ये आपके 20 डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज के साथ आपने ऐड कर दिए एक्सचेंज रेट्स, और जितने भी इनके साथ A1, A2, A3, A4 अप टू A20 है, ये जो आपके आ रहे हैं, ये तमाम वैल्यूज आपके स्लोप कोएफिशिएंट्स हैं. और स्लोप कोएफिशिएंट्स वो हैं जो कि अपने पर्टिकुलर करेंसीज के कोएफिशिएंट्स को डील कर रही हैं कि इस करेंसी में इतना चेंज आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, या फिर जो आपके पेरेंट कंपनी की जो कैश फ्लोज हैं, उस पर इतना इंपैक्ट लेके आएगा. सो बेसिकली हर आपका कोएफिशिएंट जो भी यहाँ पे रिग्रेशन का आंसर आएगा, वो डिफाइन करेगा कि इतने % चेंज विल ब्रिंग दिस मच चेंज इन योर द पेरेंट्स कैश फ्लो और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज. सो दैट्स हाउ यू गो फॉर द इकोनॉमिक एनालिसिस या इकोनॉमिक एक्सपोजर, कि आप बेसिकली किस तरह से इकोनॉमिक एक्सपोजर को हेज कर सकते हैं या फिर इकोनॉमिक एक्सपोजर को मेजर कर सकते हैं थ्रू एम्पिरिकल एनालिसिस. जो हमने पिछली स्लाइड पे या पिछले लेक्चर में बात की थी रिगार्डिंग ओनली वन करेंसी, वेयर वी डिस्कस्ड कि आपकी जो वन करेंसी में चेंज है या एक्सचेंज रेट में चेंज है, कितना चेंज वो लाएगा ऑन दी एक्सचेंज ऑन दी PCF. एंड इन दिस केस वी आर ट्राइंग टू मूव इट ऑन टुवर्ड्स दी फर्दर, जहां पे आपका 20 सब्सिडरीज हैं, यू आर ट्राइंग टू सी कि किसी एक सब्सिडरी का चेंज आपकी जो पेरेंट कंपनी की कैश फ्लो है उसमें कितना चेंज लेके आएगा. सो यू कैन गो फॉर द एम्पिरिकल एनालिसिस वेयर वन बाय वन यू कैन सी द डिफरेंस बाय कंसिडरिंग द स्लोप कोएफिशिएंट्स एंड यू कैन सी हाउ मच चेंज दे कैन ब्रिंग इनटू द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द पेरेंट कंपनी. By replacing the dependent variable cash flows, the impact of exchange rates on firm's value as measured by its stock price, earnings, exports, sales, etc. may be assessed. So आप जिस तरह हमने अभी independent variables की बात की कि आप right side के ऊपर further variables add कर सकते हैं और further exchange rates को add कर सकते हैं, since you are dealing into 20 different countries and 20 different currencies, what you can do is you can also go for the same type of the analysis if you want to change the dependent variable. जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपका PCF था, यू कैन चेंज इट विद एनी टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड यू कैन सी कि कितना चेंज आपके एक्सचेंज रेट मूवमेंट इस फैक्टर में लेके आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लोज, वो तो आपका पिछली एग्जाम्पल में हो गया. यू कैन ऑल्सो सी कितनी अर्निंग्स इफेक्ट हो सकती हैं ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. यू कैन ऑल्सो सी कि कितनी एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो सकती हैं ड्यू टू दी एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस द सेल्स क्राइटेरिया कि आप अपनी सेल्स की जो वैल्यूज हैं उनको डिपेंडेंट वेरिएबल बना लें और राइट साइड के ऊपर आप एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को लें एंड देन यू कैन सी कि आपकी जो सेल्स हैं वो कितनी इफेक्ट होती हैं ड्यू टू दी एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. And you can further there can be any other variable which is your point of interest which you can see कि आपका dependent variable क्या है, that is dependent upon the change into exchange rate and how much effect it can have due to the changes in exchange rate movements. So these are all factors by which you can go for the econometric analysis. तो जो आपका econometric analysis है वो किसी एक variable के लिए specific नहीं है. You can go for the econometric analysis by using different methods and different criteria. और आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में एडिशंस करके या चेंज करके आप अपना एनालिसिस मूव कर सकते हैं या फिर फर्दर वे में या फिर दूसरे एस्पेक्ट में कंसिडर कर सकते हैं. सो जब आप मॉडल की बात करते हैं तो इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है दैट इज द मॉडल रिग्रेशन मॉडल वेयर इट हैज द एजेंडा कि आपको डिस्क्राइब करे कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कितनी डिपेंडेंस है, किसी एक वेरिएबल में चेंज दूसरे वेरिएबल में क्या इंपैक्ट लेके आता है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आप बात करें रिग्रेशन मॉडल की, so it is confined only with PCF or exchange rate movements.
आपका पीसीएफ भी चेंज हो सकता है विद योर अर्निंग्स, विद योर एक्सपोर्ट्स वैल्यूज, सेल्स वैल्यूज एक्सेट्रा। और ऑन योर राइट हैंड साइड जब आप एक्सचेंज रेट्स की बात करें, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी एक कंट्री का ही एक्सचेंज रेट लें। देयर इज पॉसिबिलिटी कि यू कैन जस्ट मूव ऑन विद, क्योंकि आपकी 20 सब्सिडरीज हैं, सो यू कैन मूव ऑन विद दी 20 डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स एंड देन उनका रेट ऑफ चेंज आप चेक कर लें टुवर्ड्स द पेरेंट कंपनी कि उनका कितना इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऑन योर राइट हैंड साइड जब आप डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज ले लेंगे, सो ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू विल हैव द पॉइंट कि आप उसको अगर चेंज करना चाहें टू विद द अर्निंग्स, तो अब आप ये देखेंगे कि कितना परसेंट चेंज इन एक्सचेंज रेट विल ब्रिंग हाउ मच चेंज इन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। तो आपका रिग्रेशन मॉडल बेसिकली एक मॉडल है जो कि आपके लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज करके फाइनली ये बताता है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कितना इम्पैक्ट आ सकता है या कितने परसेंट इम्पैक्ट आ सकता है। Now let's take the quotation from Pepsi, and what do they say about the economic exposure? The economic exposure or the economic impact of currency exchange rates on us is complex because such changes are often linked to variability in real growth, inflation, interest rates, governmental actions and other factors. These changes, if material, can cause us to adjust our financing and operating strategies. So from Pepsi's point of view, which is again a huge name and it is dealing into different countries and also in different currencies, what they think about the economic exposure, the economic impact of currency exchanges rates is quite complex because उनके लिए it is quite complex to define कि आपका जो economic एक्सपोजर है उससे उनकी कंपनी किस तरह से फेस करती है या फिर करेंसी एक्सचेंज रेट्स का कितना इम्पैक्ट आ सकता है ओवर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सच चेंजेस आर आल्सो लिंक्ड अकॉर्डिंग टू पेप्सी। आपकी जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स हैं दे आर आल्सो लिंक्ड टुवर्ड्स द वेरिएबिलिटी इन रियल ग्रोथ, कि आपके कंट्री की या करेंसी की रियल ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन आपके कंट्री में कितनी है, इंटरेस्ट रेट आपके कंट्री में कितने ऑफर हो रहे हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल्स कितने हैं। दीज आर ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस व्हिच हैव अ स्ट्रांग इम्पैक्ट ओवर द इंटरनेशनल बिजनेस एंड यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस की तो जो आपकी कंट्री की ग्रोथ है that do have an impact over international business, और जब उसका impact international business पे आता है so obviously it is a chain और international business के साथ international finance पर भी उसका impact आता है। On the other hand you can also see कि inflation का impact business पे जरूर आता है, जिस तरह हमने बात की कि inflation की वजह से क्या होता है, prices increase होती हैं, उनका impact imports पे कैसे आता है, exports पे कैसे आता है, और जब इसका impact imports और exports पे आता है तो obviously international finance पे भी आता है। Similarly इंटरेस्ट रेट्स की हमने बात की कि फाइनेंशियल एसेट्स में जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर हो रहे होंगे इन्वेस्टर्स वुड बी मोर विलिंग टू गो फॉर दोज कंट्रीज। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स भी आपकी ट्रेड होती है और आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स काउंट्स होते हैं, और उस केस में जब आपकी कंट्री का चेंज आता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स तो ऑब्वियसली डिमांड्स भी इफेक्ट होती हैं। So when you are talking about the economic impact of currency exchange rates on any cash flow of the company, so from the Pepsi's point of view, it's really hard to define कि किसी exchange rate का change इनकी parent company की जो cash flows हैं उन पर कितना आता है और किस तरह से आता है, because according to Pepsi, not only the exchange rate movements, but there is also possibility कि exchange rate movement जो है वो linked हैं with other factors that involve the growth, inflation, interest rate and also the governmental actions. We have discussed the governmental actions in detail in our previous lectures also, कि जहां पर हमने बात की थी कि आपके जो गवर्नमेंट की मूवमेंट्स हैं या सॉरी जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपकी इंपोर्ट्स की डिमांड्स इंक्रीज हो जाती हैं, फिर रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट कि अगर इंपोर्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या रिएक्शन शो करती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द इंपोर्ट प्रेशर बिकॉज नो वन वांट्स और नो कंट्री वांट्स टू हैव higher imports and less exports. Everyone wants to have more exports and less imports. और जब कोई कंट्री ये फोकस करता है कि उस कंट्री में imports का रेशियो ज्यादा हो रहा है due to any factor, say for example increase in national income, people are trying to buy more of the international products, more of the imported products, what will happen?
In that case, obviously, आपके governmental actions are required, and government sometimes impose quotas, sometimes impose tariffs, and sometimes they import taxes. What happens that governments usually go and intervene into the foreign market, international business market, and what they are trying to do is कि जब वो quotas impose कर देंगे तो obviously people will start to reduce the demand for imported products, क्योंकि एक तो कोटा है, आपके पास वो products अवेलेबल ही नहीं है. दूसरा, जब टैक्सेस इम्पोज होंगे या टैरिफ्स लगेंगे तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी सो इन दैट केस ऑब्वियसली आपकी इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगी. दे ऑल हैव एन इम्पैक्ट ओवर इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल फाइनेंस. सो व्हेन यू से कि आपकी कंपनी की एक्सचेंज रेट की वजह से कितना एक्सपोज होती है टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्सपोजर, सो इट्स रियली हार्ड फॉर द पेप्सी कंपनी टू डिफाइन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पेप्सी कंपनी दे आर सेइंग कि इकोनॉमिक एक्सपोजर तो ऑब्वियसली होगा, बट foreign exchange movement जो है they are already linked with certain conditions or specific conditions in the prevailing in the country that involve your inflation, interest rates, governmental actions, and etc. everything. Let's see, move on towards the economic exposure further into the details, which is a multinational company can determine its exposure by assessing the sensitivity of its cash inflows and outflows to various possible exchange rate scenarios. Now, when you are talking about the multinational company, so they can determine their exposure by assessing the sensitivity, as we discussed, कि कितनी sensitive हैं आपकी cash flows towards the change in exchange rate movements. तो आपकी जो multinational company है, अगर वो अपने previous trends को देख लें और ये जान लें कि आपके जो exchange rate movements होते हैं उसके साथ आपके cash inflows और cash outflows future past में कितने effect होते रहे हैं, so in that case they can determine the exposure by assessing the sensitivity. तो जब आप sensitivity की बात करते हैं या word sensitivity यूज करते हैं, so that is something by which the multinational companies can decide कि आपकी companies जो हैं वो कितनी exposed हैं toward different types of exposure, whether it is transaction exposure or it is economic exposure. तो जो degree है या जो sensitivity है, if you are sure about that, then you can predict the future to some extent कि आपके future में जो changes होंगे वो कितने होंगे या किस तरह से होंगे. So multinational companies they need to know कि आपके आपकी जो कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है, how much they are sensitive towards their cash inflows and outflows in terms of exchange rate movements. The multinational company can then reduce its exposure by restructuring its operations to balance its exchange rate sensitive cash flows. अब obviously जब भी हमने बात की कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनको हेजिंग का पता होना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज को ये पता होना चाहिए कि उनका बिजनेस किस हद तक एक्सपोज्ड है टुवर्ड इकोनॉमिक एक्सपोजर या टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. जब भी आप ये क्राइटेरियाज यूज करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज मस्ट नो अबाउट दिस थिंग, वाई डू वी यूज इट? बिकॉज वी वॉन्ट टू नो कि अगर मल्टीनेशनल कंपनी को इन तमाम एक्सपोजर्स का पता है, देन दे शुड नो हाउ टू बेसिकली फाइट विद दिस और हाउ टू एलिमिनेट दीज टाइप्स ऑफ इश्यूज. अब अगर मल्टीनेशनल कंपनी को ये पता है कि कितनी सेंसिटिव है उनकी कैश फ्लोज फॉर द एक्सचेंज रेट एक्सपोजर, फॉर द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, सो ऑब्वियसली पास्ट ट्रेंड्स को देख के जब वो फ्यूचर में ये सोच सकते हैं कि हमारी कंपनी इस एक्सचेंज रेट मूवमेंट के साथ इस तरह से रिएक्ट करती है या फिर इस तरह से हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड इफेक्ट होती है और उसी तरह से कैश फ्लोज इफेक्ट होते हैं, सो इन दैट केस द मल्टीनेशनल कंपनी कैन देन रिड्यूस इट्स एक्सपोजर. क्योंकि जब आपको ये पता लग गया कि आपकी कंपनी एक्सपोज्ड है टुवर्ड दिस पर्टिकुलर एक्सपोजर, देन यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि इसको कम किस तरह से करना है या फिर इसको रिड्यूस किस तरह से करना है. वन थिंग बाय रीस्ट्रक्चरिंग इट्स ऑपरेशंस, और आप किस तरह से रीस्ट्रक्चर करेंगे कि आप उसको रीडिजाइन कर देंगे और आप अपने रीस्ट्रक्चर कर देंगे अपने तमाम ऑपरेशंस को टू बैलेंस इट्स एक्सचेंज रेट सेंसिटिव कैश फ्लोज. तो पहली चीज अगेन कि आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी कितनी सेंसिटिव है टुवर्ड्स कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, या फिर कितनी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्सपोजर्स. Once you know that these are the changes which do have an impact over the company's cash flows, then you can decide how to reduce it. And if you are deciding that how you can reduce it, then you have to go for the criteria of restructuring. अब restructuring क्या है? That you can go for the restructuring in its operations.
कि कंपनी अपने ऑपरेशंस में रीस्ट्रक्चरिंग कर दे टू बेसिकली बैलेंस इट्स एक्सचेंज रेट सेंसिटिव कैश फ्लोज, बिकॉज एक्सचेंज रेट सेंसिटिव कैश फ्लोज तो आपने डिफाइन कर लिया कि ये एक्सचेंज रेट कैश फ्लोज सेंसिटिव हैं. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपने उनकी रीस्ट्रक्चरिंग किस तरह से करनी है. Note that computer spreadsheets are often used to expedite the analysis. कि अब जब आपने ये डिसाइड कर दिया कि आपने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो वो किस तरह से करनी है कि मोस्टली अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस क्लासेस कि आपको ये पता है कि इंटरनेट ने और कंप्यूटर फैसिलिटीज ने चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं या चीज़ों को बहुत आपको फैसिलिटेट कर दिया है. When you are talking about the international business, again, the spreadsheets are the way by which you can go and design your spreadsheet into the computer, and then you can use the analysis and you can expedite the analysis to see कि आपने restructuring किस तरह से करनी है. But first you should use the spreadsheet analysis, जिसके थ्रू आप ये चेक करते हैं कि आपको analysis करना किस तरह से और किस तरह से आपने देखना है कि changes cash flow में कितने आ रहे हैं और कब आ रहे हैं. Now this is one example in which you are trying to see कि आपका original impact of exchange rate movements क्या आ रहा है on earnings. तो आपका basically आप impact देखना चाह रहे हैं of exchange rate movements on the earnings of the company. Now any company, in this case we are talking about the Madison company, which is the name, and we are talking about the its earnings in terms of millions. So let's see this in detail. आप मेडिसिन कंपनी के इम्पैक्ट्स चेक कर रहे हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स ऑन अर्निंग्स, इसकी अर्निंग्स पे. कंपनी का नाम मेडिसिन है और दे आर डीलिंग इन मिलियंस एंड योर इनकम इज और अर्निंग इज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. इसको अगर आप गौर से देखें तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं. अगर आपको ये क्लियर नजर आ रहा है, सो दिस इज कैनेडियन डॉलर इक्वल्स टू $0.75. In second one, Canadian dollar is equals to $0.80. In third scenario, Canadian dollar is equals to $0.85. So basically 3 different scenarios, one with $0.75 equals to $1 Canadian dollar, second with $0.80 equals to $1 Canadian dollar, and third case $0.85 equal to $1 Canadian dollar. If this is the exchange rate change in Canadian dollar, so how would you get a change in the future cash inflows? तो आपने बेसिकली एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स का इम्पैक्ट देखना है ओवर योर अर्निंग्स के फ्यूचर में जो आपकी अर्निंग्स आनी है वो कितना इफेक्ट होंगी ड्यू टू दी एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. तो आप अगर सबसे पहले आपके पास आ रही है सेल्स की कैटेगरी, सेकंड में आपके पास आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, थर्ड में आपके पास आ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनली इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका आ रहा है. एक्सपेंस मींस आपने पेमेंट करनी है, सो दीज आर योर एक्सपेंसेस. तो आपने सेल्स से तो आपके पास आती है इनकम, ये आपको आइडिया होगा कि सेल्स से आपके पास इनकम आती है. आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिए. ऑब्वियसली एक्सपेंसेस अगर आ रहे हैं तो आपने रिड्यूस करने हैं इनकम में से, ये आपके लेस हो जाएंगे, आपके इंटरेस्ट जो है वो भी लेस हो जाएगा. सो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज फाइनली जो आपकी इनकम बिफोर टैक्सेस आएगी, जो आपका 15th पॉइंट है, दिस वन, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस. सो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं $32.2 million. Next one आपके पास $25.48 million, and finally you are having $17.86 million. अब आप इसको कंपेयर करें इन वैल्यूज के साथ, because we are trying to see the link जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट का आएगा with your earnings. आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आपने ये देखना है कि आपके कैनेडियन डॉलर में जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट आ रहा है, विच इज 0.75 इन फर्स्ट केस, 0.80 इन सेकंड केस एंड $0.85 इन थर्ड केस. एक्सचेंज रेट मूवमेंट हो रही है, एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है. सो इन फर्स्ट केस वेयर एक्सचेंज रेट वॉज कैनेडियन डॉलर इक्वल्स टू 0.75, जो कि रिड्यूस्ड अमाउंट थी, कम अमाउंट थी दोनों केसेस के कंपैरेटिवली. जो आपके बाकी 2 केसेस हैं, एक में $0.80 है, दूसरे में $0.85 है पर कैनेडियन डॉलर.
फर्स्ट वाले में जब आपके कैनेडियन डॉलर्स was equal to $0.75, तो आपका इनकम आ रही थी 32.2 मिलियन डॉलर्स की। जब आपका एक्सचेंज रेट चेंज हुआ विच वॉज 0.80 डॉलर्स पर Canadian dollar, then your income has become 25.48 million dollars. Finally, अगर आप इसमें देखें, जब आपके पास 0.85 डॉलर्स की वैल्यू आ रही है for per or 1 Canadian dollar, then your income has come towards 17.86 million dollars. अब अगर आप ऊपर की फिगर्स को बॉटम में जो फिगर्स आ रही हैं उनके साथ मैच करें, do you find anything, any trend or any point which you want to think about? या आपके माइंड में कोई ऐसी चीज आ रही है जो बहुत क्लियर है या जो विजिबल है आफ्टर कंसिडरिंग आपकी जो एक्सचेंज रेट्स हैं और आपकी जो इनकम है? यस, दैट्स करेक्ट। आपके जो एक्सचेंज रेट है जो इंक्रीज हो रहा है, आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है। बिकॉज जब आपके पास एक्सचेंज रेट 0.75 था फर्स्ट केस में, यहां पर जब आपका एक्सचेंज रेट 0.75 था तो आपकी इनकम 32.2 मिलियन डॉलर्स थी। जब आपका एक्सचेंज रेट 0.80 हो गया तो आपके पास इनकम 25.48 मिलियन डॉलर्स हो गई। जब आपका एक्सचेंज रेट 0.85 डॉलर हो गया सो आपके पास आपकी इनकम 17.86 हो गई। तो इन तीनों फिगर्स में अगर आप देखें तो रिड्यूस हो रहा है, ट्रेंड आपका रिड्यूस हो रहा है। सो इन दैट केस जिस तरह आपका एक्सचेंज रेट अबव की साइड पे या प्लस की साइड पे मूव किया है, उतना ही आपकी इनकम रिड्यूस हुई है। सो दैट मीन्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट हैज शोन एन इम्पैक्ट ओवर द कैश इनफ्लोज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी विच इज बेसिकली डीलिंग इन कैनेडियन डॉलर एंड डॉलर। सो दैट मीन्स बिजनेस जो है वो कनाडा और अमेरिका के दरमियान हो रहा है और एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स की वजह से फ्यूचर इनकम्स जो हैं वो इफेक्ट हो रही हैं। So that was the main point which we were focusing on, that is also dealing with the economic exposure. So Madison's earning, Madison जो भी हमने कंपनी की बात की, it's the name of that particular company, कि Madison's earning before taxes is inversely related to the Canadian dollar strength. अभी हमने बात की कि Madison कंपनी की जो earnings हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, जो exchange rate ऊपर की तरफ या increase हो रहा है या फिर जो आपकी Canadian dollar strong होता जा रहा है, उतना ही earnings reduce होती जा रही हैं। So basically there is a negative relationship, क्योंकि आपके Canadian dollar increase कर रहा है in its value और अर्निंग्स जो मेडिसन कंपनी की है वो रिड्यूस हो रही हैं। सो दैट मींस दोनों के दरमियान में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो मेडिसन अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस इज इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्स रिलेशनशिप इज नेगेटिव रिलेशनशिप टू द कैनेडियन डॉलर स्ट्रेंथ सिंस द हायर एक्सपेंसेस मोर देन ऑफसेट द हायर रेवेन्यूज व्हेन द कैनेडियन डॉलर स्ट्रेंथन्स। सो दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि बोथ आर हैविंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिकॉज कि जो हायर एक्सपेंसेस हैं, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जब आपकी एक्सपेंसेस हायर हो जाते हैं फॉर फॉरेन एक्सपेंसेस जब आपके हायर हो जाते हैं, सो उस केस में ऑब्वियसली आपकी इनकम्स रिड्यूस कर जाती हैं। सो आपके हायर एक्सपेंसेस मोर देन ऑफसेट द हायर रेवेन्यूज व्हेन द कैनेडियन डॉलर स्ट्रेंथन्स। The company may reduce its exposure by increasing Canadian sales. अब जिस तरह आपने ये एक तो डिसाइड कर लिया कि ओके फाइन, जो इस तरह हमने पिछली स्लाइड्स में बात की थी कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक्सपोज्ड हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्सपोजर या नहीं। वंस यू हैव डिसाइडेड कि यस योर फ्यूचर इनकम्स आर लिंक्ड विद द इकोनॉमिक एक्सपोजर, बिकॉज अभी आपने देख लिया कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट के साथ आपकी कंपनी की कैश इनफ्लोज इफेक्ट होंगे या फ्यूचर अर्निंग्स इफेक्ट होंगी और वो रिड्यूस हो जाएंगी। सो नाउ देयर इज अ पॉइंट वेयर यू हैव टू डिसाइड about the strategy, which strategy you should choose so that you can avoid exchange rate or you can avoid any exposure. Madison may reduce its exposure by increasing Canadian sales, reducing orders of Canadian materials and borrowing less in Canadian dollars. So अगर तो आपको इस तरह से इकोनॉमिक एक्सपोजर फील हो रहा है कि स्ट्रेंथनिंग द कैनेडियन डॉलर विल रिड्यूस द मेडिसिन कंपनीज फ्यूचर इनकम, व्हाट मेडिसिन कंपनी कैन डू इज दैट दे कैन रिड्यूस इट एक्सपोजर टुवर्ड इंक्रीजिंग द कैनेडियन सेल्स। तो कनाडा में सेल्स इंक्रीज ना करें, उसको रिड्यूस कर दें।
ऑल्सो रिड्यूस द ऑर्डर्स फ्रॉम द कैनेडियन मटीरियल्स, तो जो आप कनाडा से मटीरियल्स मंगा रहे थे या इम्पोर्ट्स कर रहे थे उनको भी रिड्यूस कर दें, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग की केस में जब कैनेडियन करेंसी स्ट्रेंथन होगी उस केस में आपको लॉस होगा. एंड बोरो ऑल्सो बोरो लेस इन कैनेडियन डॉलर. सो बेसिकली व्हेन यू सी कि आपको किसी करेंसी की स्ट्रेंथ के साथ आपको लॉस होगा, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन रिड्यूस द सेल्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, you can reduce the imports from that particular country, and also you can reduce the borrowings from that particular country. So that will have a good impact, or that will basically offset your loss in that case. So जब आपका economic exposure होता है, एक तो चीज ये कि you should know how much exposed you are towards the economic exposure. Second thing, you should know how to offset that exposure या फिर how to offset that loss. So in this case where we have seen कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट आपने देखी या फ्यूचर अर्निंग के बारे में जो आपने देखा कि कितने एक्सचेंज रेट मूवमेंट विल हैव एन इम्पैक्ट ओवर द फ्यूचर अर्निंग्स. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो मेडिसन कंपनी जो है उनकी हमने इनकम स्टेटमेंट में देख लिया कि जो कैनेडियन डॉलर स्ट्रेंथन होता है उतना ही मेडिसन कंपनी की इनकम रिड्यूस हो रही है. सो इन दैट केस द एजेंडा फॉर द मेडिसन कंपनी शुड बी, और द पॉलिसी ऑफ मेडिसन कंपनी शुड बी दैट दे शुड रिड्यूस the Canadian sales, or they should be reducing its exposure towards the increase towards Canadian sale, and they should reduce the orders of Canadian materials, क्योंकि उस केस में आपको पेमेंट्स देनी पड़ेंगी, और अगर स्ट्रेंथन हो रही है कोई करेंसी तो आपकी पेमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगी. फाइनली यू शुड ऑल्सो अवॉइड बोरोइंग फ्रॉम कैनेडियन डॉलर्स. तो कैनेडियन डॉलर्स को आप बेसिकली व्हेन दे आर स्ट्रेंथनिंग, सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड दैट करेंसी जो कि स्ट्रेंथन हो रही है, बिकॉज इन दैट केस यू आर फेसिंग द इकोनॉमिक एक्सपोजर, और आपके फ्यूचर इनकम्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं ड्यू टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, और फ्यूचर कमिंग जो आपके इनकम आनी है वो बेसिकली रिड्यूस हो रही है. So that's how by using this example I guess you should be more clear about the economic exposure कि आपने किस तरह से उसको eliminate करना है या reduce करना है जब आपकी कंपनी किसी economic exposure को face कर रही है. So in that case you have to design some policies, because one thing you should know how much you are facing the economic exposure. Second thing, once you have decided कि okay fine yes we are facing this much economic exposure, then you have to decide कि which strategy you should follow. अगर तो इन केस ऑफ मेडिसिन कंपनी जिस तरह हमने देखा तो इनकम सिर्फ इफेक्ट हो रही थी कि इनकम आपकी जो कि मेन क्राइटेरिया इकोनॉमिक एक्सपोजर का कि आपके फ्यूचर इनकम्स जो है वो इफेक्ट होती हैं ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट. सो इन दैट केस यू विल ट्राई टू अवॉइड going there, and you will try to avoid the sales in Canadian dollars, and you should try to avoid getting imports from Canadian dollar. You should avoid borrowing from Canadian dollar, because by using this you are trying to hedge yourself against economic exposure. Now we also said कि जब आप स्प्रेडशीट्स को यूज कर लेते हैं, जिस तरह कि हमने अभी पिछली इनकम स्टेटमेंट देखी है जिसमें एक स्प्रेडशीट को यूज करके यू हैव सीन के जी ओके फाइन अगर एक्सचेंज रेट ये है 0.75 है तो इनकम कितनी होगी, अगर 0.80 है तो इनकम कितनी होगी, अगर 0.85 है तो इनकम कितनी होगी. दैट वाज बेसिकली द जॉब ऑफ द स्प्रेडशीट कि आपको स्प्रेडशीट के ऊपर आप पूरा का पूरा एनालिसिस करके कंपैरिजन कर लेते हैं कि आपका इस एक्सचेंज रेट के अगेंस्ट आपकी इनकम कितनी इफेक्ट होगी. Once you are done with that, then you have to go for के okay fine, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड्स में बात की कि जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर कितना है, then you have to go for the strategies या policies in which one of them is also restructuring कि आप restructure कर दें अपने operations को उन तमाम points पर जो कि exposed हैं toward economic exposure. Multinational companies may restructure their operations to reduce their economic exposure. So once Madison company for example उन्होंने डिसाइड कर लिया कि yes they are facing the economic exposure और उनके future incomes जो हैं वो exposed हैं due to the exchange rate movement. Now this is the point where Madison company should decide how they can restructure their functions or operations, because due to the restructuring of their operations they will reduce their economic exposure, which is the main objective of the Madison company. क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपोजर जो है ड्यू टू दैट योर कंपनी विल रिसीव लेस income in future. You are trying to avoid that thing and you are trying to increase the incomes and you are trying to use the hedging for that, and for which you can go for the restructuring. और restructuring basically किस में होती है? In operations. Operations को use करके multinational company will restructure the operations to reduce their economic exposure. The restructuring involves shifting the sources of costs or revenues
to other locations in order to match cash inflows and cash outflows in foreign currencies. तो रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली किस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है कि आप सोर्सेज जो है आपके कॉस्ट्स के या फिर रेवेन्यूज के जिन जिन कंट्रीज में है या जिन जिन करेंसीज में है उनको रीस्ट्रक्चर कर दें और उनको शिफ्ट कर दें टू सम अदर प्लेस या फिर किसी और करेंसी में मूव कर दें, बिकॉज इन दैट केस यू वुड बी एबल टू मैच द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन फॉरेन करेंसीज. तो आपको अगर किसी एक करेंसी में लॉस का जिस तरह से पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमने एग्जांपल की है कैनेडियन डॉलर की, अगर तो आपको कैनेडियन डॉलर की स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट नहीं है और आपको पता है कि ये स्ट्रांग होना है, इन दैट केस यू आर ट्राइंग कि ओके फाइन यू कैन गो फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग, कि आप अपने ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर कर दें और आप अपने जो आपकी कॉस्ट्स हैं या रेवेन्यूज हैं जिसमें भी आपको इकोनॉमिक एक्सपोजर का डाउट है उसको आप रीस्ट्रक्चर कर दें उन कंट्रीज में या उन करेंसीज में जहां पे यू कैन बैलेंस देम फॉर द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन फॉरेन करेंसीज. तो एक चीज तो ये डिसाइड होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आपकी जो बिजनेस है इंटरनेशनल बिजनेस वो किस टाइप का एक्सपोजर फेस कर रहा है. और फिर जब ये डिसाइड हो जाए कि आपका ओके फाइन आपका बिजनेस अगर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फेस कर रहा है देन दे हैव टू गो फॉर द स्ट्रेटजीज व्हिच आर डिजाइन फॉर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. On the other hand, if your business is focusing on the exposure and they find कि आपका जो business है they are basically going to have some economic exposure in future, then they have to decide for the strategies of economic exposure hedging techniques. In that case, you can go for the restructuring. और restructuring क्या है कि आप basically operations को restructure कर देते हैं, उन currencies में move कर देते हैं जहाँ cash inflows and cash outflows जो हैं उनको आप basically match कर देते हैं with different foreign currencies so that you are trying to avoid the economic exposure. Restructuring to reduce economic exposure involves shifting, which we have already discussed it, and then the proposed structure is then evaluated by assessing the sensitivity of its cash inflows and outflows to various possible exchange rate scenarios. तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ओके फाइन रीस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है और आपने रीस्ट्रक्चर करना है अपने ऑपरेशंस को, देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट द प्रपोज्ड स्ट्रक्चर इज देन बी एवेल्युएटेड, कि जो आपने प्रपोज किया है कि फाइन हमने इन ऑपरेशंस को मूव करना है यहां से किसी दूसरी लोकेशन पर या किसी दूसरी उसमें करेंसी में, देन यू हैव टू असेस देम और एवेल्युएट देम कि आपका जो डिसीजन है वो ठीक है या नहीं है. और फॉर असेसमेंट यू हैव टू गो फॉर द सेंसिटिविटी एनालिसिस अगेन, जिसमें आप सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि आपकी जो बिजनेस की या आपके जो कैश फ्लोज हैं वो कितने सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स द एक्सचेंज रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी और कंट्री. तो जब आपने मूव कर लिया या रीलोकेट कर दिया अपने बिजनेस को या फिर रीस्ट्रक्चर कर दिया ऑपरेशंस को किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपने ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस यू वुड डिसाइड कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है या फिर किस तरह से मूव करना है. Now there is a possibility obviously कि 100% तो गारंटी आप नहीं कर सकते हैं hedging techniques को. There are certain issues attached with restructuring also, and restructuring operation is a long-term solution to reduce economic exposure. जब आप restructuring की बात करते हैं so that is a long-term procedure which can be used to avoid the economic exposure, because जब आप restructuring की बात करें so that is not something which can be done within hours or within 1 or 2 days. जब आपने obviously कोई location change करनी है, business को यहाँ से वहां मूव करना है, किसी एक करेंसी से दूसरे करेंसी में मूव करना है, इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस. इट इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स टास्क देन hedging any foreign currency transaction. तो जिस तरह हमने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में देखा कि आप डिफरेंट टाइप के hedging को यूज कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप उसको कितना डील कर सकते हैं या कितना हेज कर सकते हैं. सो ऑन दी अदर हैंड यू कैन ऑल्सो सी कि रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म टास्क है एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट क्विकली, बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग में आपको पूरा का पूरा लोकेशन या तो मूव करना है और दूसरा hedging जो है फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन के थ्रू इट्स क्वाइट सिंपल. के जिस तरह से आपने फॉर एग्जांपल हमने बात की थी मनी मार्केट हेजिंग की, तो हमने कहा कि ओके फाइन यू हैव टू बोरो इन डोमेस्टिक करेंसी एंड इन्वेस्ट इट इन फॉरेन करेंसी. तो दैट इज समथिंग वेयर यू कैन गो टू द बैंक, बोरो द अमाउंट एंड इन्वेस्ट इट इन अदर बिजनेस और इन अदर कंट्री. वो तो चलें फाइन, समझ में आता है कि आप उसको क्वाइट क्विकली यू कैन डू इट एंड यू कैन हेज योरसेल्फ अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ एक्सपोजर.
But when you are talking about the economic exposure, since you are dealing about the future cash inflows, in that case future cash incomes की जब आप बात कर रहे हैं, तो जब आप उसको reduce करना चाहेंगे, eliminate करना चाहेंगे उस exposure को, there is some type of issues which can be, because since it is a long term process, so there is a possibility that it will take time, and again 100% you can't guarantee कि hedging possible है. Multinational company must be very confident about the long-term potential benefits before they proceed to restructure their operations because of the high reversal costs. तो जब आप restructuring की बात करते हैं, so the multinational companies, they must know कि जब वो उसको रीस्ट्रक्चर कर रही हैं, सो हाउ मच कॉस्ट्स आर इन्वॉल्व, और कितना बेनिफिट उनको होगा उनको रीलोकेट करने में या लोकेशन को मूव करने के लिए. Because in case if they are not satisfied with their new location, then they have to come back towards their previous points, which are to some extent you can say कि जी उनकी रिवर्सल कॉस्ट जो है वो that can be too high. कि आपने ओके डिसाइड कर लिया कि आपने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है in any other location in any other country, and now you are not satisfied with that relocation also. तो वो रीस्ट्रक्चरिंग अगर वेस्ट होती है and you want to come back again in this country, then again it will cost you a lot. And again, when it costs you a lot, so it's a lengthy, one thing it is lengthy process, second thing it is expensive process. तो जब आप restructuring करते हैं, being a financial manager of any multinational company, if you are going or if you are designing restructuring of your operation, you must be 100% sure whether you want to do it or there are still some doubts. Because you must be clear that if you are going to any other location, it will give you benefit in the end. Because वापस आना या रिवर्सल जो है, that will involve high reversal costs. Secondly, restructuring may involve increasing or reducing sales in new or existing foreign markets. That can be also an issue कि आप एक नई मार्केट में एंटर हो रहे हैं, so obviously you should know कि वो कितना आप उसमें किस तरह से पेनेट्रेट कर सकते हैं और कितना सक्सेसफुली आप नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं. Restructuring word, it's simple कि okay fine, you will relocate it from one place to the other place, but on the other hand if you consider it कि आपको एक जगह से बिजनेस उठा के दूसरी जगह मूव करना है, it's not that simple. बिकॉज उस मार्केट का अपना एक एनवायरनमेंट होगा, उसमें इंक्रीज या रिड्यूस होंगी सेल्स. सो क्योंकि आप एक नई फॉरेन मार्केट में जा रहे हैं, सो इट्स नॉट 100% गारंटीड कि आप वहां पर भी प्रॉफिट्स अर्न करेंगे. इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सप्लायर. So when you are restructuring, so there is a possibility कि या तो आप increase करेंगे या reduce करेंगे your dependency on foreign suppliers. तो जो आपकी foreign countries में या foreign suppliers हैं, उनमें आपकी dependence भी either increase हो जाएगी या decrease हो जाएगी. So that should also be in your mind and you would focus that also. Establishing or eliminating production facilities in foreign markets, and if you are doing this, so obviously it's not quite simple कि आप अगर एक लोकेशन पे satisfied नहीं है and you are feeling कि वहाँ पे आपको economic exposure आप face कर रहे हैं, so okay fine, let's move on to the other location, since it will involve one thing, either increase or decrease in sales, जो कि पॉसिबल है, गारंटीड नहीं है कि आपकी नई लोकेशन में आपको 100% इंक्रीज ही मिलेगा इन सेल्स. सेकंड थिंग, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिपेंडेंसी ऑफ द फॉरेन सप्लाईज. फॉरेन सप्लाईज भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं, दैट कैन ऑल्सो हिंडर योर इंटरनेशनल बिजनेस. थर्ड थिंग, एस्टैब्लिशिंग एलिमिनेटिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन फॉरेन मार्केट्स कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके फॉरेन मार्केट्स में या तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्टैब्लिश हो जाएं या फिर आप उसको एलिमिनेट कर दें ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स. फाइनली, यू कैन ऑल्सो सी increasing or reducing the level of debt denominated in foreign currencies. तो क्योंकि आप नए उसमें मूव कर रहे हैं, नई लोकेशन में, नए फॉरेन कंट्री में मूव कर रहे हैं फॉर योर रीस्ट्रक्चरिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप या तो इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें द लेवल ऑफ डेट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसीज. सो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रख के देन यू शुड डिसाइड कि वेदर यू वांट टू गो फॉर रीस्ट्रक्चरिंग और नॉट. So let's review today's lecture. First of all, we discussed the economic exposure with empirical analysis. As we said कि जब आपको की कंपनी को economic exposure को face कर रही है, so there is a possibility that the company can judge that how much economic exposure they are facing, and for that they can go for the empirical analysis, in which the regression model can tell you कि how much change in exchange rate will bring an impact over the future earnings of the company. So जिस तरह हमने example की बात की मेडिसिन कंपनी
कंपनी की जिसमें आपकी फ्यूचर अर्निंग्स जो हैं देट आर गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट विद द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैनेडियन डॉलर। तो जो आपकी करेंसी स्ट्रेंथन जून जून हो रही थी, उसी तरह आपकी फ्यूचर इनकम्स डिक्रीज हो रही थी। सेम थिंग कैन बी जज बाय यूजिंग द एम्पिरिकल एनालिसिस, बाय यूजिंग द रिग्रेशन मॉडल, एंड इन विच वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट अगर आप इकोनॉमिक एक्सपोजर को जज करना चाह रहे हैं और किसी पेरेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट कंपनी ने अगर फर्दर 20 सब्सिडरीज यूज की हुई हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, या फिर उनकी डिफरेंट सब्सिडरीज हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गो एंड चेक कि किस कंट्री का एक्सचेंज रेट कितना फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ड्यू टू विच हाउ मच चेंज इन द पेरेंट कंपनीज कैश फ्लो विल हैव इन इट्स स्ट्रेंथ। तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर 20 सब्सिडरीज हैं, सो यू कैन हैव 20 डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद 20 डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स इन योर रिग्रेशन मॉडल, एंड देन यू कैन सी कि कितना स्लोप कोएफिशिएंट जो है उसमें चेंज आ रहा है। और स्लोप कोएफिशिएंट इज समथिंग व्हिच विल डिफाइन दैट दिस मच चेंज विल ब्रिंग द चेंज इन द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। We also discussed that when you are talking about the regression model, so it's not necessary that it will focus only on the exchange rates and only on the future cash flows. You can also see the future earnings. You can also see the different criterias or different factors of the company by putting them in their dependent variables place, and then you can see how much impact of exchange rate movement can bring on the earnings, can bring on any other thing which you want to see. So when you are talking about the economic exposure with empirical analysis, so you are trying to see कि आपके पास कितना impact आ सकता है economic exposure के through कंपनी की future cash flows के ऊपर। So empirical analysis is one point where you should know या company should know कि आपको किस तरह से focus करना है towards your future policies. A multinational company can decide or can determine its exposure by assessing the sensitivity. So once we also decided कि आपकी जो multinational company है उसके बारे में हम ये भी देखते हैं, for example कि multinational company कितना exposure face कर रही है, and you can assess it by using the sensitivity analysis कि कितनी sensitive है एक्सचेंज रेट मूवमेंट के अकॉर्डिंगली, कितनी सेंसिटिव है मल्टीनेशनल कंपनी और कितना सेंसिटिवली बिहेव कर रही है, और फ्यूचर अर्निंग्स कितनी इफेक्ट हो रही हैं ड्यू टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट। सो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी और ऑफ अ पेरेंट कंपनी, यू शुड नो कि कितना चेंज इन एक्सचेंज रेट विल ब्रिंग द चेंज इन योर फ्यूचर इनकम्स। तो जितनी सेंसिटिव ज्यादा होगी उतनी आपको एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स का आइडिया होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज अगेन वी हैव डिसाइडेड कि फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि कितना एक्सपोजर आप फेस कर रहे हैं। सेकंड थिंग यू शुड डिटरमिन द डिग्री और द सेंसिटिविटी कि कितनी डिग्री या कितनी स्ट्रेंथ है उस एक्सपोजर की टुवर्ड्स योर कंपनी। वंस यू हैव डिसाइडेड कि यस यू आर फेसिंग द इकोनॉमिक एक्सपोजर, देन you should decide how to reduce that exposure. Now let's see how you can reduce this when we are discussing the economic exposure. So you can go for the restructuring. What is restructuring? As discussed in the transaction exposure, कि जब transaction exposure की बात करते हैं तो उसमें basically different types की transaction में आपको hedging techniques हमने पढ़ी थी by using different criteria, forward contract, future contract, या फिर आप किसी और money market strategies के through या options contract के through, currency swaps के through, parallel loans के through आप hedging कर सकते हैं. However, when you are discussing the economic exposure, so it's really hard because it is a time consuming process in terms of restructuring, because restructuring is something where you are trying to see okay fine, if you are if it is not possible to hedge in a way कि economic exposure जो है उसमें आपको basically consider करना है exchange rate movement को. So restructuring क्या है कि आप एक location change कर देंगे या फिर currency change कर देंगे, अपनी investment criteria in different country you will install it. So one thing, restructuring, it's quite lengthy. Second thing, it can be expensive because आप relocate कर रहे हैं in any other place and you are trying to install or you are trying to set up your business in any other country or currency. So obviously one thing, it will take time. It's not as simple as you are going for the any money market hedging technique, but you have to use relocation criteria and you have to decide कि आपको किस country में move करना है और जहाँ आप 100% sure हो, because आपको वहाँ जाके अपना setup बनाना है. अगर if you are not sure and you want to come back, in that case आपके वापस जो आने की costs होंगी they will be quite high. So जब आप restructuring के बारे में decide करते हैं, so in that case you must be 100% sure that whether you want to opt it or not.
Finally, we also discussed that when you are talking about the restructuring, okay, fine, it is expensive, it is time consuming, but on the other hand, there are some other issues also attached, because you are trying to launch your business into a new market, into a new foreign country. There is a possibility कि आपकी demand decline कर जाए rather than increasing. There is a possibility कि आप जो अपना setup लगाएं उसको आपको reduce करना पड़ जाए. And again, economic factors तो दूसरे countries में involved हैं ही, government conditions भी involved है. So when you are talking about restructuring as a hedging criteria, you must be 100% sure that whether you want to opt it or not. And if you want to opt it, then you must be sure that it will give you benefit. Otherwise, the hedging will, rather than give you benefit, can cost you a lot, and that will affect the financial health of your organization a lot. So in next class we will go for the translation exposure and the hedging criteria for translation exposure. Till then, thank you and Allah Hafiz.